जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट। अगर आपको याद हो तो हमने उस दिन क्या किया था। वी स्टार्टेड ऑफ विद मोशन में किस किस तरह की मोशन को कंट्रोल करना होता है और किस किस के तरह की मोशन को मेजर करना होता है। उससे रिलेटेड कुछ सेंसेस हमने डिस्कस किए थे। Some of them were translational, some of them were rotational। और मैकेनिकल स्विचेस देखे थे हमने, रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर देखा था, स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। अच्छा, उसमें एक हमने जो इम्पोर्टेंट सेंसर किया था उस दिन, दैट वाज द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और ये वाली स्पेसिफिकली जो इसकी डायग्राम थी, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताती थी कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, उसकी वजह से ये कोर होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से ये अपवर्ड की तरफ मोशन करता है या डाउनवर्ड की तरफ मोशन करता है। जो भी फिनोमेना होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि इन द मार्केट ये इस शेप में अवेलेबल होता है, ठीक है, और इसमें इस शेप के अराउंड ये प्रोसीजर पूरा कैसे हो रहा होता है, ये कैसे मोशन परफॉर्म हो रही होती है, कैसे ये मैयर कर रहा होता है। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपको एक इसकी वीडियो क्लिप दिखाऊं यूट्यूब में, तो आपको ज़रा और भी बेहतर हो जाएगा इसका वर्किंग फिनोमेना। तो अभी मैं स्विचिंग टू यूट्यूब फॉर दैट वीडियो क्लिप। वो वीडियो प्ले होगी, फिर उसके बाद अ, अ, हम इस पे कमेंट करेंगे, ठीक है। सो Function and working of LVDT. LVDT is also known as Linear Variable Differential Transducer or Transformer. It is a passive transducer which measures displacement. It consists of a primary coil wounded on a hollow cylindrical rod and is connected to the AC source. It also consists of two secondary coils having equal number of turns and is wounded on a hollow cylinder at equal distance on either side of the primary coil. The two secondary coils are connected with each other in series opposition, so that the net induced EMF of the two secondary coils becomes. We see that a movable soft iron core is placed inside a hollow cylinder. Position of this core with respect to the two secondary coils will affect the magnetic coupling between the primary and two secondary coils. Let's now understand how this LVDT works. We see that when an AC source is activated, alternating current starts flowing through the coil, due to which varying magnetic field is produced. Now, when this varying magnetic field interacts with the secondary coil, an EMF is induced in the two secondary coils. We see that initially the core is placed in such a position that equal EMF gets induced in both the coils, due to which the net EMF of the two secondary coils becomes zero. This position of the core is known as null position. Now, if we move the core towards the right, we see that the flux linking with coil S2 becomes greater than the flux linking with coil S1. As a result, the EMF induced in the coil S2 becomes greater than the EMF induced in coil S1, and the net EMF shows a negative value. Similarly, if we move the core towards the left, we see that the flux linking with coil S1 becomes greater than the flux linking with coil S2. As a result, EMF induced in coil S1 becomes greater than the EMF induced in coil S2, and the net EMF shows a positive value. Thus, LVDT uses the magnitude and polarity of the net EMF induced to measure the displacement of its core from the null position. अच्छा जी, तो आई थिंक आपने देखा होगा और इस एनिमेशन से आपको मज़ीद क्लियर हो गई होगी कि किस तरह एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर जो है परफॉर्म कर रहा होता है। सिर्फ यहाँ जो वीडियो और जो हमने किया हुआ है उसमें थोड़ा नोटेशन का फ़र्क है। यहाँ पे जो हम इसके क्रॉस वोल्टेज है उसको V1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो E से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नॉट अ बिग डिफरेंस। बाकी आपने देख लिया और ये आपके उसमें भी रह जाएगी, रिकॉर्ड में भी रह जाएगी, ताकि आपको और भी आसानी हो जाएगी इसको देखना और इसको फॉलो अप करना, ठीक है। सो वी मूव फॉरवर्ड। ये शिफ्ट इनकोडर हम देख चुके हैं। उसके बाद द अदर वन इज द एनालॉग स्पीडोमीटर।
ठीक है, ये थोड़े से वक्त के साथ साथ कम हो गए हैं, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप डिजिटल स्पीडोमीटर पे जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा एनालॉग स्पीडोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लें। एनालॉग स्पीडोमीटर में क्या होता है कि जो उसकी ड्राइविंग शाफ्ट होती है, जैसे कि ये वाली, इसके साथ आपके एक मैग्नेट अटैच होता है, जो कि वो क्या कर रहा होता है, आपके ऑटोमोबाइल के व्हील को चला रहा होता है। ठीक है, और ये मैग्नेट जो होता है ये उसी स्पीड से चल रहा होता है जिस स्पीड से आपका व्हील चल रहा होता है। मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, एडी करंट, और इसको स्पीड कप भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो आपकी शाफ्ट है, और इस एडी करंट की वजह से क्या होता है, मूव, ये जो स्पीड कप होता है ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन हेयर स्प्रिंग गाड़ी का एक जो पार्ट होता है ये वाला, इसकी वजह से उसकी स्पीड बनिस्बत है थोड़ी सी स्लो होती है। और जो अमाउंट ऑफ जो कि एडी करंट इस फिनोमेना की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ये ड्राइव शाफ्ट की, ये वाली जो ड्राइव शाफ्ट है इसकी स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी जितनी ज़्यादा ड्राइव शाफ्ट की स्पीड होगी उसी स्पीड से जो है आपके पास ये एडी करंट जो है वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और एक आपके पास किलोमीटर पर आवर में जो है एक ट्रांसलेशन, इस मोशन को मैयर करने के लिए आपके पास स्केल होता है, क्योंकि जो भी या जो है, अगर आप ट्रांसलेशन के हिसाब से देखना चाह रहे हैं कि ये जो व्हील है इसने ट्रांसलेटरी मोशन कितनी है तो की है, वो उसका यूनिट आप देख सकते हो किलोमीटर पर आवर में। लेकिन आपकी गाड़ी का टायर जो है किस आरपीएम से चल रहा है, यानी कि उसकी रोटेशनल स्पीड कितनी है, रेवोल्यूशन पर मिनट उसने कितने हैं, तो वो आप आरपीएम वाले स्केल से कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल फिनोमेना। एक मैग्नेट है वो कि ड्राइव शाफ्ट के साथ अटैच है, और ये उसी स्पीड से रोटेट हो रहा है जिस स्पीड से आपका व्हील रोटेट हो रहा है। एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एडी करंट भी उसकी उतना ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा जितना ज़्यादा आपके पास जो आपकी ड्राइव शाफ्ट है उसकी स्पीड है। ठीक है, और अगर आपने देखना है कि ट्रांसलेशनल डिस्टेंस आपकी गाड़ी ने या उस व्हीकल ने कितना कवर किया, दैट यू कैन वॉच इट थ्रू किलोमीटर पर आवर, और अगर आपने रोटेशनल देखना है तो आप वो देख सकते हो आरपीएम के थ्रू। अच्छा, अब डिजिटल स्पीडोमीटर क्या होता है, ये क्या कर रहे होते हैं, इसके बैक एंड पे क्या कैलकुलेशन हो रही होती है, ये ट्रांसलेशनल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और उसका ये फॉर्मूला होता है। और एंगुलर वेलोसिटी इज बीइंग डन with this phenomena, which is omega is equal to d theta by dt, that is all, जो कि हम बहुत अरसे से देखते जा रहे हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसी कंट्रोलर के थ्रू, डिस्प्लेसमेंट सेंसर के थ्रू, ऑर्डिनो या कोई भी पिक होगा उसके ज़रिए आप इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और ऐसे आपके कंट्रोलर्स हैं जो कि आपके रोटेशनल और ट्रांसलेशनल सेंसर्स के साथ कंपैटिबल है, उनको आप इजीली इंटरफेस करते हो और अपना आरपीएम कवर कर लेते हो, तो ये काफ़ी रिगुलसली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर है, वेलोसिटी मेजर करने वाले डिवाइसेस हैं, जो कि दे आर नोन एज द जायरोस्कोप्स। आपने जायरोस्कोप नाम भी सुना होगा, और अपने लुक अराउंड अगर आप कर रहे हैं तो आजकल आपकी हर दूसरी चीज़ के अंदर एक गायरोस्कोप लगा हुआ है। अब ये क्या कर रहा होता है, ये रोटेशन को सेंस करने के लिए यूज होता है। ये इसके अंदर का वर्किंग फिनोमेना होता है। इसमें एक स्पिनिंग व्हील होता है जो कि किसी भी एक्सिस की ओरिएंटेशन को जिसे कहते हैं ना यूज कर सकता है। और ये क्या कर रहे होते हैं, यूजुअली 2 या 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैयर कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा होता है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, बाइक्स में, मोबाइल फोन्स में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन के प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा होता है, पोजीशन मेजर कर रहा होता है, वेलोसिटी मेजर कर रहा होता है, ओरिएंटेशन मेजर कर रहा होता है। आपका इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट होता है, एक सेंसर होता है, उसके अंदर भी होता है ये जायरो लगा हुआ होता है, और एयरक्राफ्ट में होता है, मशीन में होता है। मतलब टुडे इन टुडेज वर्ल्ड देर इज नथिंग ऐसा जिसके अंदर आपके पास जायरो ना लगा हो। और डिफरेंट आपके डिफरेंट जो मार्केट में अवेलेबल रोबोट्स हैं उनके अंदर भी ये अवेलेबल है, और ये बैलेंस कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और अब आजकल के दौर में ये जायरोस्कोप्स जो हैं दे आर यूज इन द मेम्स वर्ल्ड। मेम्स वर्ल्ड क्या है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म में चला गया है, मतलब उसका बहुत ही माइक्रो वर्जन होगा, और उसमें ये डिवाइसेस जो हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में डिफरेंट पोजीशन मेजर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि अब आपके मोबाइल फ़ोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं, आपकी टैब्स हैं, इन इन चीज़ों में अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 4 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का जायरोस्कोप लगा होगा।
बहुत ही माइक्रो लेवल पे लगा होगा, तभी तो उसके अंदर उसने इंटीग्रेट होकर वो बहुत सारे मल्टीटास्क को परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट one of the most common material sensor that is being used to measure the velocity nowadays। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंट नजर आएंगे, ठीक है, और ये बहुत स्मॉल साइजेस में भी अवेलेबल है। अच्छा, अब एक और चीज, इन्हीं की तरह के एक और डिवाइसेस होते हैं एक्सेलेरोमीटर। अगर आप इसके वर्किंग प्रिंसिपल को और डेप्थ में देखना चाहते हैं ना जायरोस्कोप के, तो आप गूगल पे जाके लिखिएगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जायरोस्कोप। इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट जायरो स्टेबलाइजर्स और उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हुई हुई होती हैं। तो और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी एट दिस मोमेंट। क्योंकि ये एक अभी बहुत ही छोटा पोर्शन आप स्टडी कर रहे हो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो इनटू डेप्थ और उसको देखना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज डू इट, ठीक है। अच्छा, अब अगला है एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर। एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिवाइस जो है एक्सेलरोमीटर है, जो कि डिफरेंट सेंसर्स के साथ इंटीग्रेट भी होता है। इसमें क्या हो रहा होता है कि यू आर चेकिंग मयरिंग द एक्सेलरेशन, कि किस तरह आपकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करिए, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करिए। और जो डिवाइस भी इस चीज क्वांटिटी को मेजर कर रही होती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरोमीटर। अच्छा, अब एक्सेलरोमीटर होता क्या है, ये यहाँ पे एक नीचे एक लिंक शेयर हुआ हुआ है, इसमें भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके लिए। आप ज़रा ज़रूर इसको गो अराउंड कीजिएगा। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम अभी स्लाइड्स में कवर कर लेंगे। अब ये क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो कि डिफरेंट फोर्स टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच इज रिलेटेड टू ग्रेविटी एंड वाइब्रेशन उसको मेजर कर सकती है। जो इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट होता है ना आपका IMU, एक बहुत ज़्यादा बायो सेंसर्स की फील्ड में, बायोमेकाट्रॉनिक्स की फील्ड में यूज़ होने वाला सेंसर है। उसके अंदर ना gyro भी आपका अवेलेबल है और एक्सेलरोमीटर भी अवेलेबल है। जब हमारी यूनिवर्सिटी खुलेगी ना, तो आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट। अगर आप देखना चाहें तो एक बैंड है, आर्म बैंड है, एक काइंड ऑफ सेंसर है, इट्स अ वेयरेबल डिवाइस जिसको कहते हैं मायो आर्म बैंड। मायो आर्म बैंड, उसके अंदर वो 8 EMG सेंसर लगे हुए हैं, जो कि बॉडी से EMG सिग्नल्स कैच करने के लिए यूज होते हैं। और उसके अंदर बिल्ड इन उसका एक्सेलेरोमीटर भी है, उसके अंदर उसका जायरोस्कोप भी है। उसमें बड़ी अच्छे उसके फीचर्स हैं, और उसके अंदर बड़े लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास अचीव किए हैं। आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट फॉर माई PhD रिसर्च वर्क। उस पर भी आपसे थोड़ी सी डिस्कशन होगी, लेकिन आप ज़रूर उसको ना मायो बैंड को एक दफ़ा जाके ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट। अच्छा, अच्छा जी। अब क्या है, अब ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये गाड़ियों में, प्लेन्स में, शिप्स में, आपके मोबाइल फोन्स में। आप अगर देखें, अगर आप अपने फ़ोन को उठाते हैं और आप देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस ओरिएंटेशन में आपने अपना फ़ोन उठाया हुआ, एकदम आपकी स्क्रीन स्वैप हो जाती है ना उस हिसाब से। तो वो कैसे हो जाती है, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सेलेरोमीटर। और ये बहुत ज़्यादा गेम्स और टैबलेट्स वगैरह में भी, गेमिंग वगैरह में बड़ा यूज़ हो रहा होता है। और ये उसको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब आपकी अगर कोई ये जो सारी टेक्निकल वॉशिंग मशीन है, ये इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन है, उसमें वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी स्पिनर के मोड को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो जो स्पिन हो रहा होता है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ RPM के हिसाब से हो रहा होता है। अगर आप देखें ना ऑटो वॉश, तो उसमें आपके पास कुछ ऑटो वॉश होगी, जैसे कि कैनवुड की हो गई या सैमसंग की हो गई, उसके अंदर आपके पास मोड इज़ अवेलेबल कि आपने कितनी RPM रखनी है। तो उसमें आप यकीन करें 700 से लेके 2000 RPM तक भी ऑप्शन होती है। तो ये दैट इज़ हाई काइंड ऑफ वाइब्रेशन। और उसमें अगर ये होगा कि अगर आपका वाइब्रेशन का एक्सेलरोमीटर काम नहीं करा, और आपने मशीन को एकदम रोकना है और वाइब्रेशन इंड्यूस हो रही है उसमें, तो लिटरली आपकी मशीन जो है वो इस तरह काम करेगी कि यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट अनलेस यू अनटिल आप उसका मेन स्विच ऑफ कर दें। इस तरह हमारे घर में हुआ था कि वी गॉट अ मशीन ऑफ कैनवुड, उसके अंदर ये ऑटो वॉश थी। उसके अंदर आई दैट वो मतलब वो फॉरन इंस्टॉल नहीं हुई थी, थोड़े अरसे बाद इंस्टॉल हुई थी। दैट वाज अ फ्रंट लोडर। तो उसका भी इसी तरह RPM था, और उसके शॉक्स जो थे, वो जो वाइब्रेशन इंड्यूस करते हैं जब वो स्पिनिंग करता है,
तो वो उसके पूरे एंगेज नहीं हुए थे सही से। तो हमें नहीं पता था, और जब उसने वॉशिंग की तो वी वर अराउंड तो देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने स्पिनिंग करना शुरू किया मशीन ने ऐसे झटके लेना शुरू कर दिए कि उसके सामने एक ग्लास का स्लैब पड़ा था, वो इट वाज अबाउट, मतलब उसको भी उसने हल्का सा हिट किया, और उस वक्त समझ नहीं आई कि मशीन के साथ हुआ क्या है। तो आई जस्ट टुक आउट द प्लग, और फिर जब उसको देखा दोबारा, उसकी ज़रा मैनुअल वगैरह पढ़ा और उसमें सारी उसकी इंटीग्रेशन वगैरह देखी, तो कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो जाहिर है उसमें वाइब्रेशन इंड्यूस हो गई, क्योंकि उसके शॉक जो थे वो एंगेज नहीं हुए हुए थे। और एक्सेलरोमीटर जो कि उसका काम है कि उसकी एक्सेलरेशन को मेजर करे और स्पिनर मोड में जाकर उसको टर्न ऑफ करे, तो वो एंगेज नहीं हुआ था। फिर हमने उसके वो शॉक्स का मैकेनिज्म एंगेज किया, फिर जब दोबारा स्पिन किया तो इट वर्क परफेक्टली, फिर तो वो अपने जगह से 1 सेंटीमीटर भी ना हिली। और ये बड़ी अच्छी, आपने अगर वेबसाइट पहले भी कभी देखी होगी, एक्सप्लेन दैट स्टफ, इसमें एक्सेलरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको लुक अराउंड कीजिएगा। अच्छा जी, गाड़ी की स्पीड की एक्सेलरेशन आप किस तरह कर सकते हैं? एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और आप कार के स्पीडोमीटर से एवरी 10 सेकंड्स के बाद उसको देखें और उसमें 10 से डिवाइड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या एक्सेलरेशन आ रही है। अब एक्सेलरोमीटर के पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ही अप्लाई कर रहा होता है। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं एक्सेलरोमीटर बनाने के लिए, और MEMS एक्सेलरोमीटर आर अगेन ऑन द हाइप, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहे हैं। और मैकेनिकल एक्सेलरोमीटर की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, यू कैन सी एक स्प्रिंग सिंपल स्प्रिंग मैच डैम्पर सिस्टम होता है ना मैकेनिकल चीज़ों में, आपने देखा होगा, बिल्कुल उस तरह काम कर रहा होता है कि एक मैस होता है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच होता है, और डैम्पर होता है वो उस बॉक्स के अंदर होता है। जब मैस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेच होता है स्प्रिंग के अंदर, तो ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसमें मोशन होगी। और एक मैथ के साथ एक पॉइंटर लगा होता है जो कि उस स्ट्रेच को काउंट कर रहा होता है, और उसके हिसाब से एक्सेलरेशन को काउंट कर रहे होते हो। ठीक है, और फिर बहुत, मैंने आपको बताया एक्सेलरोमीटर में बहुत सारा डेप्थ है, इसमें बहुत सारी टाइप है, बीजो इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है, मेम्स है। इसमें क्या होता है कि आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है यहाँ पे ना, जिसके साथ आपका मैस अटैच होता है, और उस बॉक्स के अंदर उसको इनक्लोज किया होता है, और जब मैस को एक्सेलरेट किया जाता है उस क्रिस्टल के साथ वो जाके अटैच होता है, वोल्टेज अपीयर होता है क्रिस्टल के अगेंस्ट, और अगेन वो डायरेक्टली ट्रांस ट्रांस प्रोपोर्शनल होता है कि आपने कितनी एक्सेलरेशन फोर्स ड्राइव हुई। अब ये जो मैम्स वाला होगा ये बहुत, मैंने आपको बताया कि कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ही माइक्रो लेवल पे होगा। अभी अभी मीटर के वर्किंग प्रिंसिपल से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे, और उसमें भी देखेंगे कि ये किस तरह आपके फ़ोन में और छोटी छोटी डिवाइसेस, स्मार्ट वॉच और इस तरह की डिवाइसेस में होते हैं, और इनकी आईसीज किस तरह होती हैं, और ये छोटे छोटे पार्ट्स को कैसे सिलिकॉन चिप पे एच करके बनाया जाता है। ज़ाहिर है ये मैनुअल काम नहीं होता, सारा मशीन्ड काम होता है, और पाकिस्तान में मेम्स प्रिंटिंग की अभी तक तो सहूलत मुयसर नहीं है। अच्छा, और ये देखें ना, ये एक छोटी सी डायग्राम दी हुई है जिसमें क्या किया हुआ है कि नंबर 1 जो है ये स्लॉट आपको बता रहा है कि छोटा सा एक्सेलरोमीटर बनाया हुआ है और सिलिकॉन चिप के अंदर इसको इंक्लोज किया हुआ है। नंबर 2 पार्ट पे क्या है, ये एक बीम है जो कि फ्लेक्सिबल है, एक स्प्रिंग की तरह कर रही है, ये मैस हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, और ये एक बाहर के साथ जो कनेक्शन आपको चाहिए वो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और नंबर मैथ्स 1 जो है आपका, वो पर्पल लाइन जो है कैपेसिटर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैथ्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, और जैसे ही मैथ्स ऊपर नीचे मूव करेगा तो चेंज इन द कैपेसिटेंस होगी, जब चेंज इन द कैपेसिटेंस होगी इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि किस तरह आपका एक्सेलरोमीटर से एक्सेलरेशन मेजर हो रही है। ठीक है, नाउ वी विल स्विच टू द स्लाइड जिसमें हम एक्सेलरेशन को देखेंगे कि किस तरह एक्सेलरोमीटर जो हैं हमारी डे टू डे लाइफ में इंक्लोज होते हैं, और हाउ दे आर शोइंग अस द चेंज। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, ये वाला आप जरा देखिए। Have you ever wondered how your phone manages to know what direction you're holding it?
It's using a device called an accelerometer. It works by sensing the acceleration of gravity, and then you can calculate what direction the phone is facing. But how does a piece of electronics sense something mechanical like acceleration? The answer is MEMS, microelectromechanical systems. MEMS are kind of like silicon integrated circuits, but they're mechanical in nature. MEMS manufacturers use similar techniques that are used to make electronics, but instead they're making tiny mechanical structures that can interface to electronics, allowing you to build some interesting things. Here I've got some MEMS dies that I made out of silicon. They contain a lot of the same basic structures that you might find in a modern MEMS chip. Let's take a look under the microscope. This is a tiny resistor. The lighter colored material is actually electrically conductive silicon, and this darker area that's been etched away doesn't conduct. This long winding electrical path forms a resistor, very similar to how a long piece of wire would also have a significant resistance. So if you made an electrical connection between these 2 points, you'd have a microscopic resistor. Now, in order to understand how an accelerometer works, let's look at a MEMS capacitor. It doesn't look much like a capacitor, does it? Well, remember that all a capacitor really is 2 conductive plates that are electrically separated. Here are the 2 terminals of the capacitor. Over here we have what's called a combed finger arrangement. The 2 structures are very close to each other, but they aren't quite touching. Let me highlight it for you. Now it should be more obvious that you have parallel surfaces which form a capacitor. But this is no ordinary capacitor. It's a physical structure that can move. This thing over here is basically a tiny weight made out of silicon, and it's kind of like a suspended mass on the end of a spring. Movement, vibrations, and even gravity can cause this little mass to move around, and when it does, it shifts the entire combed finger structure. When the fingers move, the distance between the fingers changes. And when the distance between the fingers changes, you get a change in capacitance. So now we have an electromechanical system that can sense movement and turn it into a changing capacitance value. The next step would be to design circuitry that can sense the change in capacitance and convert it into useful voltages or serial data, but that's beyond the scope of this tutorial. A modern MEMS accelerometer will contain structures similar to this, except with even more fingers to increase the surface area, which increases the capacitance, which makes changes in acceleration easier to detect. Here's another electromechanical capacitor, except it senses acceleration on the horizontal axis. Ignore this, that'll buff right out. When the suspended mass moves in the horizontal direction, the surface area between the fingers changes, and then you can have some electronics to sense the change in capacitance again. Now, if you want to play around with accelerometers at home, you don't need a microscope. You can go to a company like Adafruit and buy a PCB with an accelerometer chip on it. Just power it with 5 volts between V-in and ground, and you'll get voltages that correspond to acceleration on the X, Y, and Z axes. Now you know how an accelerometer works. Thanks for watching. Whenever you listen to a pitch of a startup, they claim at the end of the pitch, and we are going to change the world with this technology. I think among all the startups that claim to change the world, Arduino changed the world already. There is a company अच्छा जी सॉरी मैं ज़रा हट के गई थी हेडफोन्स लेने और ये ऐड आ गया सॉरी फॉर दैट सो एज यू माइट हैव सीन द कंप्लीट वीडियो जिसमें अगेन आपके पास लिंक भी आ गया इसी तरह आप जायरोस्कोप की भी देख सकते हो ठीक है सो वी मूव फॉरवर्ड की पोजीशन और मोशन को मेजर करने के लिए कैसे आपके पास जो है वो स्ट्रेन गेजेस भी यूज़ हो रहे होते हैं स्ट्रेन गेजेस का कैसे हमने इसका काम इस्तेमाल पहले भी देखा हुआ है लेकिन अब ज़रा हम इसे और देखना चाह रहे हैं किसी और पर्सपेक्टिव से जैसे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं जैसे कि माइक्रो साइज में तो आपके पास माइक्रो मेम्स टेक्नोलॉजी में स्ट्रेन गेजेस आर अवेलेबल और ये अगेन ये छोटे से होते हैं सेंसिटिव होते हैं तो ये डायफ्राम बेस्ड प्रेशर सेंसर जैसे हो गए प्रेशर सेंसर्स के
अंदर भी यूज़ हो जाते हैं एज अ सेकेंडरी सेंसर, एज अ प्राइमरी नहीं यूज़ हो रहे होते। और कुछ ऐसे वर्जन्स इनके ऐसे भी हैं जिसको हम यहाँ देखें कि वो जो है यूज़ हो रहे होते हैं बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए भी, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉर दैट। छोटे वर्जन के भी माइक्रो साइज में भी स्ट्रेन गेजेस अवेलेबल हैं जो कि 0 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक का जो है मेजर कर रहे होते हैं डिस्टेंस। और कुछ जो है आपके पास ऐसे स्ट्रेन गेजेस भी अवेलेबल हैं जो कि हाई मतलब के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए वर्जन उनके पे मुख्तलिफ हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है फिर उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी है जो कि मैंने आपको पीछे भी दिखाए थे। उसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर ये भी अगेन दे आर फोर्स रिलेटेड क्वांटिटी प्रेशर की फॉर्म में एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं अगेन, क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक है, पीछे आपको एक वीडियो भी तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि ईएमएफ जनरेट कर रहे होते हैं वो जब वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ जाके टच होता है तो वो क्या होता है ईएमएफ जनरेट होता है और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, और उससे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है। एक और सेंसर हमारे पास इसी कैटेगरी में होता है दैट इज द नोजल फ्लिपर सेंसर, ठीक है। ये भी अगेन रिस्ट्रिक्टेड मोशन मेजर करने के लिए होता है और ये भी सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, जो भी आप जिस भी चीज़ का ये डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा होता है इसको ये चेंज कर देता है प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी टाइप का हो गया। और इसकी क्या है, ये जो भी इसकी पिक्चर है वो हम आपको दिखाते हैं। वो क्या है कि ये पिक्चर अगर आप देख सकें तो इसके अंदर एक मेजरिंग चैम्बर होता है, एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है, वेरिएबल होती है ये वाली, उसकी फ्लैपर प्लेट होती है इसलिए इसको नोजल फ्लैपर कहते हैं। वेरिएबल है ये जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है वेरिएबल है, दैट इज वेरिएंट, ये चेंज हो सकती है। जितनी भी चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस पर क्या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एक्स, उस फॉर्म में फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। लेकिन एक इसके रॉड के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन। अब होता क्या है कि इसी मैकेनिज्म के अंदर आपको एक अननोन रेट पे आप प्रेशर इंड्यूस कर देते हो फ्लूइड से, ठीक है। और उस प्रेशर को हम क्या कह रहे होते हैं, पीएस। अब जब ये गुजरता है इस फिक्स रिस्ट्रिक्शन से गुजरेगा, फिर उसके बाद वेरिएबल रिस्ट्रिक्शन से गुजरेगा और फिर जाके हिट करेगा फ्लैपर प्लेट को। और जिस भी चीज़ को आपने मेजर करना होता है उसको आप इस फ्लैपर प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हो। और जो प्रेशर आपके पास आ रहा होता है वो आउटपुट प्रेशर होता है। और वो जितना भी प्रेशर आपके पास आउटपुट में जनरेट होगा दैट वुड बी क्वाइट मच रिलेटेड कि आपने कितना प्रेशर, कितना डिस्टेंस उसने कंप्लीट किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो वो कहाँ से होगा, वेरिएबल फ्लैपर में से, ठीक है। और ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिस्पॉन्स है, जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही देर वुड बी चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर। एक और कैटेगरी में हमारे पास सेंसर रह गया है जिसको हम कहते हैं रेंज सेंसर। आई थिंक दिस इज द लास्ट सेंसर विच इज यूज टू मेजर द पोजिशन एंड मोशन। अब इसमें क्या होता है, इसकी पिक्चर काफ़ी आपके सामने विजिबल है कि आपके पास सेंसर होता है, उसकी बॉडी जो है वो मूविंग मूविंग होती है। एक उसके पास जो होती है सोर्स होती है, दूसरा उसके पास डिटेक्टर होता है। और सामने जो जिस पे सोर्स से ये आपके पास एनर्जी सोर्स से जो है आपके पास एनर्जी इमिट कर रही होती है, वो आगे एक फिक्स बाउंड्री पे इमिट कर रही होती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक फॉर्म में हो एनर्जी। कुछ केसेस रेंज सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं लाइट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये मेजर करने के लिए यूज होते हैं रेंज सेंसर्स, दे आर स्पेसिफिकली यूज टू मेजर द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन रोटेशन के लिए बिल्कुल यूज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स बाउंड्री। अब इसमें क्या होता है, इनमें कॉमन फीचर क्या होता है कि एक सोर्स होगी, एक डिटेक्टर होगा और एक फिक्स बाउंड्री होगा। लेकिन इसमें जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो फिक्स नहीं होती, वो कभी कुछ कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अल्ट्रासोनिक वर्जन अवेलेबल है, कुछ में लाइट वर्जन अवेलेबल है। अब क्या होता है, दोनों सोर्स और दोनों डिटेक्टर एक मूविंग बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। और कितनी जो भी आउटपुट पे जितनी मोशन ये कर रहा होगा वो डिपेंड कर रही होगी कि कितनी इमेज कितना एनर्जी जो है वो डिटेक्टर रिसीव कर रहा है, ठीक है। और उस पे जो है वो आउटपुट हम देख रहे होते हैं कि कितनी आ रही होती है।
अच्छा, अब हम अगर एंड करें, इसको कंक्लूड करें, ट्रांसलेशनल मेजरिंग सेंसर्स को, रोटेशनल मेजरिंग सेंसर्स को, के अगर आपके पास ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे आउटपुट्स हैं आपके पास जिसके अंदर आपको बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मेजर करने हैं, तो हो सकता है कि वो आपके पास जो मार्केट में सेंसर अवेलेबल हो वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वाले ना हो, वो क्या कर रहे हो, वो किसी और फॉर्म में आउटपुट कैलकुलेट करके दे रहे हो, डिस्टेंस को, यानी फोर्स की फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में, या किसी और मैकेनिज्म में, और उससे फिर आप सेकेंडरी तौर पे डिराइव कर लो। तो इस तरह के काफ़ी सारे सेंसर्स अभी हमने पढ़े हैं। और अगर आप देखें, ये लोड सेल्स भी होते हैं, इनके भी बहुत डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, और वहाँ पे भी आप उससे भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए छोटे डिस्टेंसेस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। नोजल फ्लैपर भी यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि ये जितने भी मोशन सेंसर्स हैं, पोजीशन सेंसर्स हैं, कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं कि दे आर इजीली अफेक्टेड बाय द ऑपरेशनल कंडीशन, क्योंकि आप हो सकता है कि उसे ऐसे इन्वायरमेंट में इम्प्लांट कर रहे हो जहाँ आपके कोई करोसिव हो या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल हो। उन सारी कंडीशंस में देखने के लिए हमें फिर ऐसे सेंसर्स यूज करने पड़ते हैं जो कि इनसे सेंसिटिव ना हो। तो जैसा कि आपको डेप्थ में मैंने एलवीडीटी कराया और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी दिखाया, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर, और वो जो है वो यूज हो रहा होता है। अच्छा, अब दूसरा एक और चीज़ ये है कि कुछ केसेस के अंदर आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट्स हो सकती हैं, कुछ केसेस में वेलोसिटी हो सकती है। अब आपने ये देखना है कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उससे अगर आप एक चीज़ निकाल लेते हो, वेलोसिटी निकाल लेते हो, वेलोसिटी मेजरिंग ट्रांसड्यूसर है, तो यू हैव मैथमेटिकल फार्मूलाज जिसको आप उससे कन्वर्ट कर सको एक्सीलरेशन में। ठीक है, तो ये भी आप कन्वर्जन्स भी कर सकते हो, तो इससे भी आप अपनी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन अगर आप बात करो कि अगर आप इस तरह ही आप डिस्प्लेसमेंट के केस को देखो, अगर आपने पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है फ्रॉम ट्रांसलेशन टाइप वाले सेंटर जो कि हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो, फिर उसको आप वेलोसिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगेन इसमें ये होता है कि थोड़े से नॉइजेस भी इंड्यूस हो जाते हैं, उन नॉइजेस को कैटर करना फिर हमारे लिए एक टास्क बन जाता है। तो अगेन द चॉइस ऑफ सेंसर इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द आउटपुट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। So depending upon your available resources, money, space, dimension, हम इन चीज़ों पे चूज करते हैं कि हमारे पास कौन से सेंसर्स अवेलेबल हैं, कौन से नहीं हैं, और किस तरह हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द नॉट फ्यू बट मैनी फ्यू ऑफ द सेंसर्स दैट वी हैव स्टडीड, जिसमें हमने शुरू किया था स्विचेस से, और स्विचेस से फिर वी वेंट ऑफ टू द पोटेंशियोमीटर्स और एलवीडीटीज, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, शाफ्ट इनकोडर्स, डिजिटल स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर्स, और ये सारे किस तरह आपके काम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन गेजेस, पीजो इलेक्ट्रिक नोजल फ्लैपर्स, ये सारे हमने देखे। रेंज सेंसर्स, तो अब आप इनको देखिए। सो एक्सपेक्ट क्विज फ्रॉम दीज, ऐसा ही होगा जैसा कि हम देखते रहे अभी पिछले दो क्विजेस भी। आई होप कि वो आपके ठीक गए हों। तो ये अभी हम ये वीक पास ऑन हो जाए, नेक्स्ट वीक के एंड में कोई टाइम रख लेंगे तब आपका इसमें से क्विज हो जाएगा, और फिर इसके बाद एक छोटा प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का हमारा टॉपिक है, वो एक लेक्चर में कंक्लूड हो जाएगा, उसको डिस्कस करेंगे। फिर स्मार्ट सेंसर्स कुछ हैं, और फिर इस पर एक लाइव सेशन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रा फिर देख लेते हैं किस तरह मैनेज करनी है। सो आई होप इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा, और अगर होगा तो आपको पता है कि हम नेक्स्ट जब भी लाइव सेशन करेंगे तो उसमें आप प्लीज़ देख लीजिएगा जो भी सवाल पूछना हो। तो इन केस अगर इस दफ़ा के लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम रैंडमली आई वुड बी आस्किंग पीपल जो कि मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, उनको आई विल इनवाइट, और उनको मैं पूछूंगी कि भाई इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो अगर आपने स्लाइड नहीं पढ़ी होगी तो यू वोंट बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चन, और होगा सब कुछ पूछूंगी मैं सिर्फ वही चीज़ें जो कि स्लाइड्स में मेंशन होगी,
और जिसको आपको क्लास में डिस्कस किया होगा। सो बेटर ऑफ कि आप जो है ना एक दफ़ा ज़रूर इनको स्किम करके गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।